So good morning, students. Today we are going to study the nervous tissue. We have studied epithelial cells, we have studied the muscles. So today's topic is nervous tissue. So what is the origin of nervous tissue? So origin of a nervous tissue is ectoderm. Ectoderm is the primary germ layer. This thing we have already studied. What is primary germ layers and all. So ectoderm से हमेशा nervous tissue originates होती है. Now what are the special properties? The cells of a nervous tissue, that is the neurons, provides the quickest mean of communication. It provides us the quickest mean of communication within the body and help the body to give a response to the external stimulus. So it always gives us a response to the external stimulus. That means the main function of the nerve cell is a conduction of impulse. So now there are two important properties of the nerve cells are there. Very first, neuron possesses two important basic property, as I said, excitability and conductivity. Excitability and conductivity. Meaning of excitability is because of any stimulus can be environmental, stimulus can be a internal, it can be a mental, it can be a social, any kind of a stimulus. जब भी nerve cell के पास आता है, nerve cell excite हो जाती है. So and inside the nervous cell, that day I have explained, action potential is generated. What is generated? Action potential. I talk about the depolarization, repolarization, how there is a potential difference is generated, and action potential. Action potential itself is an impulse, and that is carried forward through the plasma membrane of the axon. This thing we have studied in the last lecture. So you understand. So excitability, because of any stimulus, the nervous cell becomes sensitive and there is a generation of impulse. That means the action potential. Conductivity is to carry a wave of electric impulse from the dendron to axon. So the impulse is carried from the dendron to axon hillock, from axon hillock via axon up to the telodendrons, or up to the axon bulb. This property is conductivity, and from one nerve cell to another to next, like that it reaches to the muscle, it reaches to the effector organ. So the impulses, any change, that is a movement of our leg. Why we do the movement of our leg? We do the movement of our leg because muscles and the bones, they both work together, and this movement is just because of the nervous tissue. Okay. So conductivity, these are the two important properties. General structures हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था, so it's just a revision for you guys. तो nervous system is made up of nervous tissue, और nerves tissue को, nerve cell को हम neurons भी कहते हैं. Now, as I said in earlier class, that the nervous tissue, the nerve cell are the post-mitotic cell. Nerve cell are the post-mitotic cells. That means they could not divide in adult. So damage भी होता है, deep damage भी होता है nerve cell को, वो भी repair नहीं होगा. So it is the cell which cannot be divided in adult. Once it is formed by the process of neurogenesis, it is going to form. So earlier things we have discussed. So now nervous system is made up of nervous tissue. Nervous tissue is composed of nerve cell or neurons. So now you know that because nerve cell are so important, because उसमें एक बार damage होगा वो फिर से heal up नहीं होगा. So nerve cell जो है, nerve tissue जो है, it is covered with the neuroglial cell. So neuroglial cells are more than the nerve cell, and neuroglial cell का functions हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. So main function of a neuroglial cell, because they are the supportive cell. अभी structure of nerve cell मैंने पहले ही पढ़ा दिया था. This one is the cyton, और ये है यहाँ से एक्सॉन चल रहा है, एंड देन हियर द टिलोडेंड्रॉन और एक्सॉन बल्ब. और अभी देखो जहाँ पे माइलिन शीथ है, दैट इज अ माइलिनेटेड, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, दैट इज नॉन माइलिनेटेड और नॉन मॉड्यूलेटेड. ये चीजें मैंने पढ़ाई थी. एक बार साइटॉन्स को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. न्यूरॉन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा नर्व सेल इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, एंड वी कॉल दैट मेम्ब्रेन इज अ न्यूरोलीमा. लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन. और
साइटोन जो है इट इज अ हेड लाइक थिंग, जिसे मैंने पेरिकैरियन भी कहा था. दिस वन इज आल्सो नोन एज पेरिकैरियन, or we call it as soma. So it contains a granular cytoplasm. Why it is granular? Because of Nielsen granules. और यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहते हैं, गोल्जी मेम्ब्रेन्स, आरईआर दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, एंड यहाँ पे सेंटर में है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस. द ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये जो ग्रैन्यूल्स होती है इसमें सबसे ज्यादा इट इज रिच इन आरएनए and are involved in protein synthesis, and we call it as Nielsen granule because it is first time discovered by the scientist Nielsen. Cytoplasmic extensions arises. Small one are known as dendrite and the long one is known as the axon. Nervous tissue को dendrites का structure also I have explained you in earlier classes. Now synapse also we have discussed in earlier classes very well. Synapse also I have explained to you. So look, this one are the vesicles, this one are the vesicles, and look, this is the acetylcholine molecules and these are the receptor sites. And I told you that nerve to nerve, nerve to muscle जब भी impulse carry होता है, it is always unidirectional. This thing we have studied. Now let's talk about the neuroglial cell. Now this portion that is remaining. So in the central nervous system, the inner neuroglial space is filled with a large amount of supporting non-nervous cells. So neuroglial cells are supporting cell, protective cell. They provide the nourishment because जब भी कुछ minimal damage होता है तो damage repair के लिए nourishment provide करती है, support भी करती है, protection भी करती है pathogen से. So it's kind of a bodyguard. Neuroglial cells are kind of a bodyguard. And वो कैसे support कर रही है? वो कैसे support कर रही है? They are supporting by killing the pathogen. और generally वो कैसे kill कर रही है pathogen को? By the process of phagocytosis. You all know that phagocytosis process क्या होती है? Phagocytosis is the process जिसमें ये सेल्स पैथोजेंस को अट्रैक्ट करती है, उसको सेल के अंदर ले लेती है और इनसाइड द सेल उसका किलिंग करती है. You understand? That process is known as phagocytosis. पहले होता है engulfment of a pathogen. पैथोजेंस को सेल के अंदर लिया जाता है and फिर उसका किलिंग होता है. We call it as phagocytosis. So here few the like functions are listed over here. Pehla, in the central nervous system, the interneural space is filled with a large number of supporting non-nervous cells, जिसे मैंने कहा neuroglial cell. Examples है microglial cells or oligodendrocytes. These cells are more in number compared to neurons. They are capable of regeneration division. जैसे कि nerve cell damage से repair नहीं हो सकती है, but ये cell damage से repair हो सकती है. They provide a protection by, as I said, by the phagocytosis process. Now, हमेशा ध्यान में रखना है नर्व सेल जो रहती है, नर्व सेल हमेशा एक बंडल में प्रेजेंट रहती है, ग्रुप में प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना. सो वो कैसे ग्रुप में प्रेजेंट रहती है, दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. एक सिंगल नर्व सेल है, सपोज कैन यू जस्ट लुक ओवर हियर, सोच के चलते ये सिंगल नर्व सेल है, सिंगल नर्व सेल है, और ये सिंगल नर्व सेल है. सिंगल नर्व सेल को यहाँ पे सराउंडेड रहती है कनेक्टिव टिश्यू से. एक सिंगल नर्व सेल इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को हम बोल सकते हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, बिकॉज नर्व सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हम सोच के चलते हैं कि इट इज काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ, आई कैन शो यू हियर कि सपोज ये सिंगल नर्व सेल है, ये कोई नर्व सेल है, टीएस बता रहे हैं हम नर्व सेल, और ये पूरा का पूरा नर्व सेल जो है यहाँ पे इट इज, आई कैन शो यू हियर, इट इज कवर्ड, यहाँ पे इट इज कवर्ड. अब ये जो कवरिंग है, सिंगल नर्व सेल का जो कवरिंग है, सिंगल नर्व सेल का जो कवरिंग है, सिंगल नर्व सेल के कवरिंग को हम कहेंगे एंडोन्यूरियम. ऐसे ढेर सारे एंडोन्यूरियम के ऐसे कवरिंग रहेंगे, और उसे फिर से एक बड़ा सा कवरिंग रहेगा, उसे हम कहेंगे पेरीन्यूरियम. और ऐसे ढेर सारे बंडल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा बंडल है, यहाँ पे भी बंडल्स है, इन सभी बंडल्स को और एक कवरिंग रहेगा, उसे हम कहेंगे इपीन्यूरियम. उसे हम क्या कहेंगे, इपीन्यूरियम. समझ में आया?
सो व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पे नर्व सेल, इट इज सो इम्पोर्टेंट, नर्व सेल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इसीलिए नर्व सेल को कवरिंग की जरूरत है. पहला सिंगल नर्व सेल को जो कवरिंग है उसे में हम कहेंगे एंडोन्यूरियम, और ढेर सारे एंडोन्यूरियम वाले छोटी छोटी नर्व सेल है उसको एक कवरिंग रहेगा, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज पेरिन्यूरियम. और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, देन द इपिन्यूरियम, और दूसरा जो है दैट इज इपिन्यूरियम. इस तरह से कवर बंडल्स में प्रेजेंट रहती है. सो दो नर्व कंसिस्ट ऑफ सेवरल बंडल्स, व्हाट वी कॉल इट एज fasciculi. सो बंडल्स को हम कहेंगे fasciculi. ईच बंडल इज मेड अप ऑफ मेनी नर्व सेल्स. Each fiber in each fasciculum bundle is surrounded by a connective tissue का covering रहता है. एंडोन्यूरियम, फिर रहेगा पेरिन्यूरियम, फिर रहेगा इपिन्यूरियम. I hope you understand this concept. Now next, classification of nerve cell on the basis of their structure, on the basis of their function, and on the basis of their medullary sheath. Structure के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. एंड फंक्शंस के बेसिस पे है सेंसरी, मोटर और भी रहते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट. एंड मेडुलरी शीथ के बेसिस पे है मेडुलेटेड एंड द नॉन मेडुलेटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो इसको वन बाय वन हम इसको लर्न करने वाले हैं. नेक्स्ट, अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मैंने कहा यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. सो पोल का मीनिंग होता है एंड्स, एंड्स जिसे कहते हैं. यूनिपोलर का मतलब होता है ये है साइटोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वन इज द साइटोन, आई विल शो यू हियर. ओके, सो यहाँ पे जो साइटोन है, अभी इफ यू लुक टू दिस साइटोन, साइटोन को यहाँ पे सिंगल ही पोल है. दिस इज द साइटोन, और साइटोन को यहाँ पे एक सिंगल पोल है, एक ही पोल है, और एक ही पोल से यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस निकल रहा है. साइटोन है, साइटोन को सिर्फ एक ही पोल है, तो वी आर गोइंग टू कॉल यूनिपोलर. और जनरली यूनिपोलर जो नर्व सेल्स होती है, यूनिपोलर जो नर्व सेल्स रहती है वो सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं. जनरली दोज आर सेंसरी न्यूरॉन्स. सो यहाँ पे सिंगल पोल है तो यूनिपोलर. आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट हियर. साइटोन को 1 2 3 4 5 6 like that, there are so many poles are there. So multiple poles are there, that's why we call it as multipolar neurons. इसे हम क्या कहेंगे, multipolar neurons. और ये भी दूसरा. सो जनरली हम इसी नर्व सेल की डायग्राम्स बनाते हैं, multipolar neurons. Multipolar neurons most of the time motor neurons होते हैं. Motor neurons are the nerve cell जो हमारे CNS से, that is central nervous system से मैसेज लेके आते हैं to the effector organ. और इफेक्टर ऑर्गन से कोई भी मैसेज है वो सेंसरी नर्व सेल लेके जाते हैं टू द ब्रेन. सो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी, मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएगा, और इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि स्किन है, मसल है, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है दैट इज टेकन अप टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया सेंसरी नर्व सेल. You understand up to this? Do you understand up to this? Okay, good. So now, and another nerve cell is there, that is bipolar because it has the 1 and the 2 poles. There are 1 and the 2 poles. Do you understand up to this? So now, depending on the number and the arrangement of a cytoplasmic extension, now the neurons are of 3 types. Neurons are of 3 types. पहला जो neurons मैंने बताया, it is the यूनिपोलर. यूनिपोलर जनरली रहता है सेंसरी. दूसरा मैंने बताया इट इज द बाइपोलर. बाइपोलर जो रहता है जनरली इट इज इंटरन्यूरॉन्स, मतलब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है. सो दोनों के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स. So there are 3 types of neurons on the basis of their structure. Now the next slide. So on the basis of the functions, मैंने जैसे कहा, on the basis of the functions there are again 2 types. Actually 3 है, but हम 2 बोलेंगे. पहला sensory neurons. Sensory neurons क्या होते हैं? You can check it out in a slide. Sensory neurons external stimulus को
कैरी करते हैं टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम, एक्सटर्नल स्टिमुलस को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द, अभी यहाँ पे देखो है स्किन है जनरली एक्सटर्नल स्टिमुलस, सबसे पहले हमारे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट कौन सा होता है, दैट इज स्किन। सो स्किन ही पहला सेंसेशन जो भी है वो स्किन सबसे जैसे वी हैव अ सेंसरी ऑर्गन लाइक नोज है, टंग है, ईयर्स है, आईज है, स्किन है, सो इसमें से सबसे इफेक्टिव सेंसरी ऑर्गन कौन सा, इट इज योर स्किन, इट इज योर स्किन। सो स्किन जब भी किसी स्टिमुलस को, जैसे कि ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, somebody pinches you, whatever it could be the stimuli, सबसे पहले आपकी स्किन ने उसको सेंस किया। सो स्किन से देखो, आप देखो इट इज अ स्किन, यू ऑल नो दैट स्किन इज अ मल्टीपल लेयर्स में स्किन प्रेजेंट रहती है, और somebody pinches you, सो किसी ने पिंच किया है पिन से, तो यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे टीलोडेंड्रॉन्स है और ये एक्सॉन है, एक्सॉन यहाँ पे इस तरह से, और ये नर्व सेल फाइनली जाके आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैच हो रही है। सो मैसेज जा रहा है कहाँ पे, ब्रेन पे, मतलब आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनी होती है। तो सोच के चलते हैं, अभी ये स्पाइनल कॉर्ड के पास चली गई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, पहले ब्रेन से पहले आएगा स्पाइनल कॉर्ड। सो देखो हम सोच के चलते हैं, ये चला गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, देखो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, पर ब्रेन पे ज्यादा काम का वेट ना है, इसलिए बहुत सारे डिसीजन हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेता है, समझ में आया। सो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड एक पार्ट है, तो ये देखो यहाँ पे सेंसरी नर्व सेल गया और आपके स्पाइनल कॉर्ड को अटैच हो गया, और अभी आपके स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसीजन लिया, और इस डिसीजन को लेके जा रहा है आपका मोटर नर्व सेल। सो इस तरह से अभी इसके बीच में ये देखो यहाँ पे पर्पल कलर के कुछ नर्व सेल दिख रही है, दीज आर नोन एज द इंटरन्यूरॉन्स, इसे हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स, इसे हम कहते हैं मतलब मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। डू यू अंडरस्टैंड अप टू दिस? So now motor neurons carry impulses from central nervous system towards the effector organ. It is the classification on the basis of the function. Now आपको पता है श्वान सेल एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ का डिपोजिशन करती है, किसका डिपोजिशन करती है, माइलिन शीथ का। और मैंने आपको पढ़ाया था जो नर्व सेल जिसके ऊपर माइलिन शीथ होती है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व सेल, और जो एक्सॉन इसके ऊपर माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं रहता है उसे हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व सेल। ठीक है, अभी जब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इंपल्स की, तो मेडुलेटेड नर्व सेल जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बीच बीच में नोड ऑफ रैनवियर है। नोड ऑफ रैनवियर का मतलब होता है इट इज द प्लेस ऑफ ऑन एक्सॉन जहां पे माइलिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। इस प्लेस के ऊपर आप देखना, इस प्लेस के ऊपर अभी यहाँ पे जब कंडक्शन ऑफ इंपल्स होगा, जहां जहां माइलिन का डिपोजिशन हुआ है वहां पे कंडक्शन ऑफ इंपल्स नहीं होगा। सो नोड ऑफ रैनवियर में ही कंडक्शन ऑफ इंपल्स होगा। सो जब ये कंडक्शन ऑफ इंपल्स होगा, दो नर्व सेल है, एक है हमारे पास में माइलिनेटेड, दूसरा हमारे पास में है नॉन माइलिनेटेड। सो देखो नॉन माइलिनेटेड से कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऐसा होगा, धीरे धीरे स्लोली इट विल गो थ्रू दी एक्सॉन। बट नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल जो है, जब मेडिलेटेड नर्व सेल है वहां पे ये नोड ऑफ रैनवियर से जंप करेगा इंपल्स दूसरे नोड ऑफ रैनवियर, और फिर तीसरे नोड ऑफ रैनवियर, फिर लाइक दैट। सो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसा रहेगा माइलिनेटेड नर्व सेल में, जंपिंग वाला, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक दैट, फ्रॉम नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर। सो इस टाइप की जो मूवमेंट रहती है, जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हो, पिज्जा डिलीवर करना है, एक बंदा है जो साइकिल से जा रहा है, सो वो पाथवे लेके जाएगा स्लोली। दूसरा स्पाइडरमैन है, सोच के चलते हैं, दूसरा स्पाइडरमैन है, वो तो जंप करके जाते वन बिल्डिंग टू अनदर, कौन पहले पहुंचेगा, स्पाइडरमैन। यू अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट द सेम थिंग हैपेंस। जो माइलिनेटेड नर्व सेल है उसमें
इम्पल्स जंप करते हुए जाता है नोड ऑफ रैनवियर से। सो इसमें हमेशा फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है और नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल में हमेशा स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है। कैसा होता है? स्लो। डू यू अंडरस्टैंड लाइक दिस? सो हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। सो इसको पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट आउट। सो लेट्स चेक इट आउट। तो ये देखो, माइलिनेटेड नर्व सेल श्वान सेल सिक्रेट करती है फैटी लेयर जिसे हम कहते हैं माइलिन, और नोड ऑफ रैनवियर ऐसी प्लेस है जहां पे माइलिन शिप का डिपॉजिट नहीं रहता है। सो दूसरी बात, क्रैनियल नर्व्स जो रहती है वर्टिब्रेट्स में, उसमें हमेशा माइलिनेटेड नर्व सेल्स रहती है और उसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फास्ट होता है। और जंपिंग वाला जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है उसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। लैटिन में टू साल्ट का मीनिंग होता है जंप, सो इट इज आल्सो नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में रहते हैं और इसका कंडक्शन का रेट हमेशा स्लो रहता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ देयर आर टू टाइप्स। I hope you understand about the nerve cell. Thank you very much.